ये किस पद पर कार्यरत है। कुछ मुझे जानकारी तो पता चली, बहुत अच्छा लगा। मेरे जो स्टूडेंट्स अभी जो मुझे सम्मानित किया, इसके अलावा भी जो मिलकर अब जा चुकी हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन एक जो ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन केवल हमारा डेजिग्नेशन जो है ना, थोड़ा सा प्रोग्राम में अमेंडमेंट है, और वो ये है ना कि जैसे जब हम एलुमनाई को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे, टीचर सम्मानित करेंगे ऑफ कोर्स, और उस समय बस हम ये जैसे मूवी फाइल रखेंगे, ये वाला मैं और उस समय जो है हमें अपना केवल डेजिग्नेशन, करंट डेजिग्नेशन बताना है, सो दैट हम सबको ये पता चल सके कि हम सब प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। और इससे पहले मेरा निवेदन माननीय प्रशासक महोदय से, वो एक घोषणा के लिए मुझे कह रहे थे, तो वो मैं सुनना चाहूंगी। ये माइक ना सबको वहीं पे दीजिए, एक माइक दे दीजिए सर। आप सर इतना एनर्जी रखते हैं सर, वैसे तो आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं स्कूल में पहली बार आया था फर्स्ट क्लास में, दैट वाज 1986, और फर्स्ट से लेकर 12 आई हैव बीन इन द सेम स्कूल फॉर 12 इयर्स। और यहाँ बहुत सारे छात्रों ने जिनको मैंने डायरेक्ट शिक्षा प्राप्त की है, उनको बहुत बहुत नमस्ते और थैंक्स। सर, सज्जन सर, विमलेश आर्य, मल्होत्रा मैम, अनूप धनेजा मैम, माहेश्वरी मैम, Rogya ma'am, Sushma Chanda ma'am. I can't remember all the names right now, but जब मिलता हूँ तो I can remember the faces much more than the names. And in '98 I went to IIT to do my engineering. After that I went to US for my PhD, and now I work in US. Mostly I do startups there. और just एक हफ्ता पहले I got a WhatsApp message on my phone कि school में there is reunion, and I was landing here today morning. Actually, I just landed आज सुबह 2 बजे, and then I was planning to be in Delhi, but फिर मैं टैक्सी लेके I came home thinking कि इससे ज़्यादा मौका मेरे को मिल नहीं पाएगा सबसे मिलने का, और मैं लगभग 22 साल बाद दोबारा स्कूल में आया हूँ। और कुछ चीजें मैं कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। एक तो ये कि अभी नाउ आई हैव ए 3.5 year old daughter, her name is Millie, और कभी कभी उसको मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुछ सिखाने की, और what I realize is that teaching is a very hard profession. I frankly run out of patience to teach my own daughter. Imagine teaching somebody else's kids with 30 or 40 kids in the school. So it's like जब कोई काम आदमी खुद करता है तब उस काम की एप्लीकेशन ज्यादा पता लगती है। जब आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको पता नहीं चलता है कि किस काम में कितनी मेहनत है। और दूसरी चीज एक मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक पढ़ाई बहुत स्कूलों में होती है, आप जाके मैथ, साइंस ये सब चीजें बहुत स्कूलों से सीख सकते हो, बट आई थिंक कुछ चीजें जो मैंने इस स्कूल में सीखी हैं वो they are very unique. One is I think that the country is above an individual. When I work in US and when I interact with people there and when I do something there, I really feel that I'm not just representing myself, I'm representing a country there. Now my actions, people are going to relate to India. They are going to say there was an Indian voice who did this. And I feel very disappointed when I see somebody from India either doing something bad or any kind of misconduct, because they are tarnishing the reputation of the country and not just themselves. And when you are outside, you have to be very careful, even more so than when you are in India. Second, I feel being educated in this school, I learned a lot more about the country in general. I used to do a lot of quizzes when I was there. And there were things that I used to pretty much study at that time. It's like 12 Jyotirling India mein, what are the names of 12 Jyotirlings? There are 4 Kumbh Melas, what are the 4 Kumbh Melas? And I meet a lot of students from India there, and I realize that they know very little about the country themselves. If I ask them,
सिर्फ 5 नदियों के नाम बता दो, they can't tell me 5 rivers from the country, which I think is very embarrassing that you belong to a country and you can't give some very basic information. And third, I think, which is also a very big trait, is adaptability. I think in our batch, or in general, a quality that most of us learn is how to be in an environment and adapt to the environment no matter where you are and what conditions you might be in. And that gives you a very big advantage. And right now, I am in various leadership roles in the company, either as a CEO or a CTO or some other role. And it makes a huge difference if you know how to work well with other people and how to get work done as a team rather than just as an individual. And I think that's another big quality that I feel, given the education at this school and the extracurriculars other than education, they really teach. So once again, thanks a lot, and I'm really grateful to be here and to be a student. माइक जो है वो 1981 मैडम अनूप खरेचा से स्टार्ट कर लेते हैं। मैम आपका नाम और डेजिग्नेशन और बैच बस ये आप बता दीजिए। मैंने 81 में 10th पास किया था और हमारा फर्स्ट बैच था जिसमें गर्ल्स हलवासिया विद्यालय में पढ़ने लगी थी और हम खड़े हैं वो हलवासिया बाल मंदिर के स्टूडेंट हैं। हलवासिया विद्यालय का जो इससे अगला बैच आएगा वो हलवासिया विद्यालय तो हाँ जी थैंक यू। मैं प्रोफेसर अशोक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। For the last 20 years, I am serving as a professor, Department of Law and head legal cell, and as well as I am having the other additional charge of the university apart from teaching. Thank you. मैं सत्येंद्र साहवान 85 में हलवासिया विद्या विभाग ज्वाइन किया और 89 में यहाँ से पास आउट हुआ। अब मैं ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर HR डिपार्टमेंट में वसंत कुंज दिल्ली में कार्यरत हूँ। मैं पंकज बजाज, टेक्निकल डायरेक्टर हूँ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भिवानी का डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर हूँ। जितना भी गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस की गवर्नेंस वो सब मैं मैं अनिल पोपली 1982 में मैडम ने बताया कि पहला बैच था, उनके तुरंत बाद अगले बैच से मैं यहाँ से पास आउट हुआ। मैं वैसे लाइब्रेरी हूँ लेकिन पुस्तकों का व्यापार करता हूँ। भिवानी में भी विजय पुस्तकालय के नाम से दुकान है हमारी। आज जो कुछ भी हूँ, जितना भी हूँ, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के कारण से हूँ और मैं समझता हूँ यह विद्यालय उनके इस ऋण को भी शायद कभी नहीं चुका पाएगा। मैं उनका नाम लेने से संकोच बिल्कुल भी नहीं करूँगा। श्री नरेंद्रजीत सिंह जी राव। इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूँ आपको। इस विद्यालय को ज्वाइन करने से पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, रामनगर कॉलोनी में बीटीएम चौक पे जो डीओ ऑफिस है वहाँ पढ़ता। मेरी जो उनसे मुलाकात हुई, मेरे पिताजी से पुराना परिचय है उनका, उन्होंने कहा कि इसको हलवासिया स्कूल में क्यों नहीं डालता। कहने लगे पिताजी की भी तुम्हारी फीस ज्यादा है उस समय के हिसाब से, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो रावत साहब ने एक छोटी सी पुस्तक इंग्लिश की, क्योंकि सरकारी स्कूल में उस समय इंग्लिश छठी से पढ़ाई जाती, एक पुस्तक मुझे पुरस्कार में दी और मुझे कहा कि इसको घर पे पढ़ाइए, ABCD सिखाइए। आप यकीन मानना, उनका वो पुस्तक का देना मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाल गया कि मैं चौथी में उस विद्यालय में हलवासिया बाल में गया, बच्चों से कंप्लीट किया, उनसे प्रेरणा देता रहा, मार्गदर्शन देता रहा और 5वीं में छात्रवृत्ति की परीक्षा होती थी
बस हरियाणा बोर्ड के जिले में मेरा 17वीं रैंक थी। सिर्फ उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा। मैं गोपाल अग्रवाल 1985 में मैंने 10th पास की थी यहाँ से। सबसे एक दो बात छोटी छोटी मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में बताने से पहले। इस स्कूल में इतना सम्मान मिल सकता है मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा एवरेज सा स्टूडेंट था। नॉर्मली आता था, नॉर्मली चला जाता था। साल में 4-5 बार गेट पे सम्मान मिलता था, बाल कटे हुए हैं, जूते काले क्यों नहीं है, नखून दिखाओ। आज 4 लोग गाड़ी एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं, ऐसा मजा कभी नहीं हुआ। उसके बाद अंत में, क्योंकि ये एलुमनाई मीट है, तो मैं इसके लिए 2nd क्लास या 1st क्लास में कविता पढ़ी थी, वो आज तक मुझे याद है। वो छोटी सी कविता सुनाता हूँ। करो मित्र की मदद हमेशा, तन से मन से खुश होकर, उसका जो भी काम पड़े करो उसे पूरा हंस कर। बोझ उठाता हो जब साथी, तुम भी उसकी मदद करो। पड़ जाए बीमार अगर वह, सेवा उसकी सदा करो। साथी भी हर एक काम में हंसकर हाथ बटाएगा, काम पड़ेगा कभी तुम्हारा, पूरा कर दिखलाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी दिल्ली में हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर चलाता हूँ पिछले 23 साल से, और 23 साल में यहाँ से जो सीखा है उसी की वजह से आज तक लगभग हमारे सारे सेक्टर्स में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर शिक्षा पा चुके हैं। एक बैच आउट पास करके मेरा 10th क्लास में। वर्तमान में मैं गांव में अपना रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। इससे पहले 10 साल मैंने काम किया है शोभा लिमिटेड रियल एस्टेट की कंपनी थी बेंगलोर की, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डर इन इंडिया एंड प्रोबेबली वर्ल्ड कहा जाता है, तो उसके साथ काम किया। उससे पहले 10 साल के करीब मैं ICICI बैंक में रीजनल मैनेजर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। पिछले 30 साल से मैं गुड़गांव में हूँ, और मेरे स्कूल से जो मैंने यहाँ पे टाइम तो कम ही लगाया था, 2 साल मैं हॉस्टल में था और 2 ही 9th और 10th की थी, लेकिन जितना हमने यहाँ पे सीखा और जितनी यादें यहाँ की वो कहीं की भी नहीं है, ना कॉलेज की है, ना स्कूल की है, ना कॉलेज की है। क्योंकि यहाँ जो प्यार हमारे को जैसे बताया था हमारे कुलीग ने कि मिस्टर रावल इंद्रजीत रावल सर है हमारे, मतलब उनको तो हम भूल नहीं पाते। साथ के साथ क्योंकि मैं हॉस्टल था तो कुछ शिकायतें हमारी होती थी, क्लास लगवाते थे, हमारे वार्डन थे सर हमारे विश्वनाथ जी थे हमारे टाइम पर, वो हमें रोज सुबह उठाते थे, कहते थे तुम अपने आप को भागे लो दोबारा सो रहे हो, और राहुल सर के पास गया थे, जो मतलब वो दिन भूल नहीं सकते। और आज समझ में आता है कि उनकी वर्डिंग जो थी उनका क्या मतलब था, उसे भी समझ में नहीं आता। सुबह उठ के आवासीय स्कूल की बड़ी याद आती है। उसका रीजन ये है कि प्रदीप के भजन चला करते थे जब हम प्रेयर में आते थे, तो प्रदीप के जो भजन है वो मेरे पास एक DVD है, मैं उसमें रोज सुनता हूँ। तो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे स्कूल की बड़ी याद आती है। अभी मैं किसी फ्रेंड का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर का फोन आया, तो फोन अटेंड करते हुए मैं क्लास में चला गया, मुझे याद आया कि मेरी क्लास है। बड़ा इमोशनल हो गया मैं कि इसी क्लास में रवासिया जी ने बड़े डंडे खाए हुए हैं।
अजीत जी ने बड़ी सेंटेंस फ्रेमिंग सिखाई हमें, जो आज तक काम आ रही है। सुबह से शाम तक हम ड्राफ्टिंग करते हैं। और एक बड़ा सुंदर सा गीत होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पे प्रेयर के बाद, चंदन है इस देश की माटी, तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। पहला हाँ उस टाइम भी था। अच्छा, तो ऐसी भावनाएं हमारी हैं। हम जहाँ भी अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं स्टार्टिंग में, कहाँ से है? हलवासिया स्कूल से है। हमारा बायोडाटा हलवासिया स्कूल से शुरू होता है। मैंने पीएचडी अपनी, मेरे more than 60 स्टूडेंट्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, लॉयर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। लेकिन जब भी हम अपना बायोडाटा लिखते हैं तो पहली लाइन में हलवासिया विद्या भिवानी का नाम आता है। बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। वेस्ट पुलिस से हमने ग्रेजुएशन की 88-84 में, हमने यहाँ से डेथ की। और वो मूवमेंट है जो संस्कार हमें टीचर्स ने दिए वो हम कभी नहीं भूल सकते। मैं इस स्कूल का मरते दम तक नहीं रहूंगा, कभी भी स्कूल का नहीं। मैं भिवानी में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे टीचर निलेश आचार्य जी, अजीत जी के बहुत डंडे खाए हैं हमने। हलवासिया जी बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा प्यार करते थे हमें। और आज भी जब स्कूल के से निकलते हैं तो बच्चों को वो अपना स्कूल दिखाते हैं। और हम, मेरा बिजनेस का काम है जी। एक पश्चिम यहाँ पर भीमा गार्डन के नाम से फार्म हाउस है, पेट्रोल पंप है और सब। नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। बेसिकली मैं तो शाम से हूँ और अभी साथ रहता हूँ। मेरे पास फोन फैक्ट्री का बिजनेस है, बिजली के कपड़े बनाने की फैक्ट्री। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के पास कॉन्ग्रेसर है और एक बेटे की शादी हो गई है। एक बेटी है। मुझे अलवासिया होने पे हमेशा गर्व रहता है, क्योंकि अलवासिया में 89 से 91 तक जो मुझे संस्कार गांव में, स्कूल में और जो घर में माँ बाप से, दादा दादी से मिलते थे, उनको सम्मिलित करके और एक हमारी हिंदू सनातन संस्कृति, सेवा, संस्कार, सहयोग, वो सारी चीजें उन्होंने एक तरह व्यक्तित्व जो बनाया है, वो जो सितारे हलवासी में जो चमक रहे हैं आज पूरे विश्व पटल पे, वो स्कूल की मेहरबानी है। हमारे नरेंद्र सिंह जी रावत सर, उनकी मेहरबानी से जो हमारा इतना स्टाफ था, जो हमारे गुरु जन के सभी, वो बहुत याद रखेंगे। और हमें ऐसे लगता है कि हम जैसे किसी गुरुकुल में पढ़े हो और हमें अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए हम स्कूल के हमेशा से अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, एक सेकंड सुनिए मैम, आपको रोक सकती हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हो। ऐसा है कि क्योंकि देखिए जो रिगार्ड है टीचर्स का वो हमारे मन में है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये चीज तो हमने प्रमाणित कर दी। तो यहाँ पर केवल ब्रीफ में आपका अपना नाम, डेजिग्नेशन और अपने विद्यालय का 12th पास आउट का जो भी बैच है, वो बैच तो मैंने बताया कि 1991 में समय पड़ा है। केवल नाम और डेजिग्नेशन बताकर अपनी बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको पता है टीचर्स भी इतने वयोवृद्ध हैं, तो उनसे भी ऐसे। थैंक यू। मेरी बारी आते ही दीपमाला ने बोलने को मना कर दिया। बस मैं इतना बताती हूँ कि संजय मंगल मेरा क्लासमेट है, इसने कहा मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है। ऐसे ही मेरे क्लासमेट्स हैं जिनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं और कुछ क्लासमेट्स ऐसे हैं जिनके अभी बच्चे हो रहे हैं। एक राकेश जानवर है, यूके, उसकी अभी बेटी हुई है रिसेंटली 2-4 महीने की, और इनके बच्चों के बच्चे होने वाले हैं शायद। एक दो ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई, एक दो नहीं सर, काफी है। पंकज, लोकेश तलेले, कई। Hi, I am Sangeeta Krishlani. I was Sangeeta Arya before coming to this school, and I am running IT company. It's Excellent Technology and Solution. I have my own business working for last 27 years, and everything, whatever I have done here only. And my
I'm doing a lot of hand holding of startups today, and entire credit goes to my Halwasia school. My respect to my teachers, myself Preeti Sani, और 91 बैच से हूँ मैं, और ऐसे प्रिंसिपल काम कर रही हूँ मैं यूपी बोर्ड के स्कूल में, कंपोजिट स्कूल में मेरे पास प्राइमरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1992 बैच। जिस समय वो मेरे भाव हैं, जिस समय हम यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, उस समय स्कूल का नाम जितना ऊंचा था, आज भी उतना ही ऊंचा है। सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है। 1995 में मैंने यहाँ से +2 पास किया। उसके बाद 2000 में दोबारा से मैंने स्कूल को ज्वाइन किया है एज टीचर, और अभी तक यहीं कार्यरत हूँ। इस स्कूल में मैंने बहुत सी चीजों को देखा है। मेरी माता जी ने भी यही सर्विस की, निर्दोष शर्मा मैडम यहीं बैठी हैं, रावल जी, माननीय पीसी जैन साहब, जीतराम जी एडवोकेट, इन सबके सानिध्य में मैंने काम किया। माननीय एस.के. हलवासिया जी से बहुत सी चीजों को बारीकी से सीखा गया। ए.के. शर्मा जी के अंदर पूरा सीबीएसई का काम उनके द्वारा सिखाया गया। स्टार्टिंग में मेरी ट्रेनिंग जो है हलवासिया जी के अंडर ही हुई। इस स्कूल के अंदर जितना भी काम धीरे धीरे कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे दिया गया, उसके बाद इस स्कूल के अंदर सारा काम लगभग कंप्यूटर से होता है। माननीय विमलेश जी ने आप जो ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ हर टीचर की कंप्यूटर में ट्रेनिंग करवाई गई, स्कूल को बहुत आगे तक ले जाने की इच्छा प्रकट की। माननीय डॉक्टर रमाकांत शर्मा के सानिध्य में 5 साल काम किया, बहुत से लोगों से मिलना हुआ, डॉक्टर साहब ने बहुत सी चीजों को सिखाया। मैडम महेश्वरी स्पेशल मुझे याद रहती हैं। मैडम महेश्वरी ने मुझे कई बार क्लास से बाहर किया हुआ है। पीछे बैठते थे, मैडम आती थी, हम पीछे से निकलते थे। मैडम आदर्श मल्होत्रा ने बहुत चीजें सिखाई। मैडम अरुण खनीजा ने राइटिंग के ऊपर बड़ा ध्यान दिया। बहुत से टीचर हैं, नाम सभी का लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत सी चीजें जो हैं आज जीवन में जो भी हैं वो हलवासिया स्कूल की देन है। माननीय रावल जी के साथ मैंने 5 साल विद्या भारती में काम किया, उनके साथ इंटरनेशनल नेशनल मीटिंग अटेंड की। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और स्कूल को बहुत कुछ दिया। आज भी वो स्कूल को पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की अपेक्षा, उन्हीं की आशाओं के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक चले। यही भाव से हम इस समय काम कर रहे हैं। मेरा नाम श्वेता शर्मा है, मैं श्वेता आचार्य हूँ, भिवानी में रहती हूँ। 91 बैच में मैंने यहाँ पे पास आउट किया 12th, और इंग्लिश जी और ये हलवासिया सर सब मुझे पढ़ाते थे। और मैं भी भिवानी में के स्कूल में कुछ टाइम मैंने जॉब की थी। उसके बाद मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं फ्री हूँ। बस और तो सब कुछ आप लोग का आशीर्वाद है, सबका टीचर्स का मेरे ऊपर। थैंक यू सर। मेरा नाम कुलविंदर परमार, 95 बैच में पास आउट किया था, 12th क्लास। Now I am in physics in government school. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। मेरा एक अपने पुरातन गाँव छात्रों से सुझाव है, रचनात्मक थोड़ी ही बातें हम अधिक कर लें और ऋणात्मक बात जरा हम कुछ कम करें। स्कूलिंग में अध्यापक हमेशा बच्चे के हित की बात करता है, और किसी टाइम कोई मारने की कोई बात आती है, एक को नहीं सबको ही पता है विद्यालय में पीटा जाता है या नहीं, सजा मिलती है या नहीं। इस तरह की सारी बातें तकरीबन सब अब तो आपके सबके बच्चे भी हो गए, सब अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये सारे प्रोसेस किसी एक विशेष बात के पीछे होते हैं, तो उनमें अपना समय लगवा कर हम कहाँ हैं, किस
विशेष गुण ज्यादा प्रभावित कर पाया, जिसके कारण से आज मैं वहां हूँ। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दे करके बोले तो शायद हमें भी लगेगा, खुशी होगी कि देखो इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। आप हम व्यक्ति यहाँ हैं, आप कितने ही लोग आप जैसे साहबान जी जैसे बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं अपने अपने व्यवसाय में से तो अध्यापक है। अध्यापक बनना ये भी कोई ऐसा नहीं है कि छोटा काम है, सबसे कठिन काम है। लेकिन अपने जिसके व्यवसाय में हम जब तक स्कूलिंग में रहे, रचनात्मक थोड़ी सी बात करें ताकि उससे हमें कुछ सीखने का ही मौका मिले। तो इसमें थोड़ी सी बात मेरा निवेदन है। बाकी आप जैसा कहेंगे, क्योंकि आप तो ऐसे से हमारे वो हमें मान्य होंगे, उसमें कोई हम मना नहीं करेंगे, जैसा कहेंगे सुनेंगे, लेकिन रचनात्मक हो बहुत अच्छा लगेगा। राज मेहता, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, फिलहाल भिवानी में सेटल्ड हूँ। और मतलब अब तक जितने भी एलुमनाइज ने स्कूल के बारे में जो कुछ बोला है उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के मेरे लिए कह सकते हैं। बट रियली थैंकफुल टू रेजर सर, विवेक शारे सर, सुमिरन मैम, दीपमाला, जिन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमें इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाना चाहिए। और थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे आए। बहुत शॉर्ट नोटिस था कई लोगों के लिए, बट स्टिल इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक लाइन, मैं भी जो कुछ हूँ आज इसी स्कूल की वजह से हूँ। सो थैंक यू। 98 बैच से पंकज गोल, मैं यहाँ LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ 2007 से, और मैं 98 बैच से पास आउट हूँ, और ये सारे मेरे क्लासमेट्स ही हैं। हेलो, मेरा नाम मुकेश राणा है और मैं भी 1998 बैच से हूँ, और अभी मैं एज ए टेक्निकल डायरेक्टर IHS मार्केट सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। थैंक यू। विशाल सिंह, I'm BTech LLB. I've worked with Nokia.com and I left my job in 2008. Now I'm running resort Sakutla Garden and one small little school, Kids School, and now started my business Godrej Integrated Bhiwani. Thank you. मेरा नाम विकास बंसल है, मैं भी 1998 बैच से हूँ और छोटा सा काम भिवानी शहर में ही है, आप लोगों की सेवा में रहता हूँ। मोनिका ब्रांड सरस्वती के नाम से आता है। आजकल एक थोड़ा सा जुनून और चढ़ावा मोटिवेशनल स्पीकर का, तो कुछ समय के बाद मेरी वीडियो आया करेगी, उनको ऐसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हेलो, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, मैं भी 98 बैच का हूँ, नॉन मेडिकल संस्कृत ब्रांच की तरफ। अभी आई एम वर्किंग विद एयरटेल इन गुड़गांव, देयर मेन office in Gurgaon. So I am taking care of all new like 4G, 5G. Now we are deploying 5G technology. So I am taking care of solution in corporate department. So एक जो मेजर जो मुझे यहाँ से याद आती है एक बार मैं आई वाज इन 10th क्लास, तो ग्राउंड में ऐसे बैठे थे, शाम को आया था खेलने, तो रावत साहब भी वहीं पे थे। तो मुझे करीब 96 की बात है, ये करीब 25 साल हो गया, आज मुझे याद है वो बात भी। तो वैसी बात कर रहे थे सर, मैंने बोला सर मुझे एक प्रॉब्लम है, तो बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, मुझे समझ नहीं आता है। तो उस टाइम वो बोले कि क्या प्रॉब्लम आती है? तो मैंने कहा कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं आ रही समझ में। तो वहीं मेरे साथ ही एक पोल था, तो ऐसे उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए। वो सामने टंकी है, वो क्या है? ये जो पोल है वो क्या है? तो जो टेक्निकल डिस्कशन हुई उस टाइम, मतलब वो एक ऐसे आइडियाज आते हैं आपके माइंड में कि फिर उसके बाद चीजें आसान लगने लगती हैं। तो ये जो टीचर हैं यहाँ पे अरबासिया के, मतलब दे गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाउ टू फाइट बैक। वो जो एक जो अपने अंदर आता है आपके अंदर, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरीबॉडी हैज नॉट पॉजिटिव ऑलवेज इन हिज लाइफ, कभी नेगेटिव भी आते हैं। तो हाउ टू फेस दैट नेगेटिव एंड गो अहेड। सो वो मुझे यहाँ की जो चीज है वो दैट इज वेरी, वो बहुत अच्छी है। सो प्रे टू गॉड कि ये स्कूल ऐसे ही फलता रहे और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले और बीमारी का नाम बहुत आगे तक निकले।
Ajay Gulati, 1998 batch, non-medical, and right now I work in San Jose in a company called Canny Vision as a CTO there, and mostly focus on computer-related technologies for last about 20 years. So one thing I would say, if I can be of any help in anything related to computers, feel free to reach out. I'll be happy to help. If I'm visiting, if I can come talk to some students here, we'll be happy to do that also. एक छोटी सी चीज और शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक जो मेरी मेमोरीज हैं, आई थिंक हमारा बैच ऐसा था जिसमें मैक्सिमम आईआईटी सिलेक्शंस थे। Yes, yes, yes. That's So, true. वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था बिकॉज़ हम लोग जब पढ़ रहे थे हमारे साथ के स्टूडेंट्स ये सब अचीव कर रहे थे, एंड इट वाज सो मोटिवेटिंग फॉर अस आल्सो कि हम भी कुछ करें इनको देख के। अजय गुलाटी तो हमेशा वो रेस में आगे भागने वाले को देख के ना पीछे वालों को भी मोटिवेशन मिलती थी। सो जब ये फर्स्ट आता था तो कभी हमें भी सेकंड में आने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती थी। I would like to issue one apology. I get a lot of messages on my WhatsApp. People say that because of me, they had too much of peer pressure when they were studying here. So my apologies for exerting that pressure. दीपमाला शर्मा 2000 बैच 12th पास आउट, 14 वर्ष इस विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में बिताए, 4 साल के पश्चात 9 वर्ष एक अध्यापिका के रूप में बिताए। उस समय यही तमन्ना थी दिल में जब मेरी शादी नहीं हुई थी कि मेरा जो बच्चा जो भी होगा वो हलवासिया में पढ़े, चाहे मेरी शादी कहीं भी हो। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हलवासिया में पढ़ाना है, और बाई चांस शादी भी यहाँ पर हो गई और अब मेरा बेटा स्कूल से पढ़ रहा है। इसीलिए चाहती थी और इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये टीचर्स और ये स्कूल मेरा अपना है। थैंक यू सो मच। कल जो रोली पोली का बच्चा स्टेज कंडक्शन कर रहा था वो दीपमाला जी का बेटा था। यही मैं कहना मैं विकास सिंह सालमान 99 बैच में मैंने पास आउट किया था वासे विद्यालय से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर 2008 में मैं सिविल सर्विसेज में आ गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। Presently I am posted in Gurgaon as additional commissioner income tax, and कई बार मुझे फेसबुक पर मैसेज आते हैं जैसे यंग बच्चों के सर आया हलवासिया कुछ टेस्ट कराना है, वो बोलता है आ जाओ ऑफिस। मैं उनको जान भी नहीं रहा होता, बट स्टिल यू नो बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट बॉन्डिंग, डिफरेंट कनेक्शन, यू नो व्हेन यू आर फ्रॉम द स्कूल। और यू नो मतलब त्रिपाठी सर हमारे म्यूजिक टीचर थे, 20 साल से एक सवाल को ये भी ढूंढ रहे होंगे, एक जवाब को हम भी बताना चाह रहे हैं। 99 की बात है जब प्लस 2 में थे और सर एक मिठाई का डब्बा लेके आए थे गुलाब जामुन का। वो 4-5 हम गए, हमने पूरा डब्बा खा लिया और सर आगे सर हमारे सर क्लास टीचर होते थे, सर बोले मेरा डब्बा तुम्हारे क्लास के बच्चों ने खाया। सर बोलते यार किसने खाया बताओ, बहुत टेंशन में है। So thank you sir, you know अभी वो 4-5 बच्चे थे, and believe me मतलब teaching is a very difficult profession। मैं 3 साल I was on deputation Ministry of Commerce, और उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर बना दिया जिसमें एक INI नेशनल इंस्टीट्यूट था इंडिया का, 12 कैंपसेस है across the country। और हम लोग जब भी जाते थे ना वहाँ, जैसे मैं आई यूज्ड टू विजिट कलकत्ता या जोधपुर, हम लोग जाते थे चेन्नई, तो बच्चे इतना घूम के लेते थे सर ये नहीं है वो नहीं है, आप बोलते थे भाई बहुत मुश्किल है। सो वी यूज्ड टू ऑलवेज अवॉइड कि यार यहाँ जाना ना पड़े, बेटर है तुम लोग संभालो। सो द यू नो कंसर्न इंचार्ज यूज्ड टू हैंडल इट। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नेक्स्ट टाइम एज मैडम वाज आल्सो सेइंग दैट यू नो if we'll come to know that there is a function happening, we'll come even uninvited. Thank you. मेरा नाम अंकुर मराठा है। मैं 94 में यहाँ एडमिशन लिया था और 2000 में एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुआ था और मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंकर था। तो यहाँ से पास होने के बाद मैंने एमकॉम किया है, एलएलबी कॉमर्स किया है और अभी एट प्रेजेंट मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ ऑडिट डिपार्टमेंट हरियाणा। और वैसे तो हमारे सभी गुरुजन बहुत ही सम्मानीय है और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, लेकिन 2 टीचर्स जो अभी भी हैं यहाँ स्टेज पे जिन्होंने क्लास में पढ़ाया था, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। एक तो हेमंत सर, इनका सबसे स्पेशल कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने मैथ्स का डर निकाल दिया। जो मैथ्स के स्टूडेंट रहे उन्हें पता कि 11th में मैथ्स थोड़ा हार्ड होता है, 12th में फिर भी आसान है,
तो 11th में हमें यूं लगा कि भाई मैथ्स छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सर लकीली 12th में सर आ गए और उसके बाद वो सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरे 95 मार्क्स आए। तो उनकी राइटिंग जो ब्लैक बोर्ड में इनकी राइटिंग थी किसी टीचर की आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी बढ़िया राइटिंग, बहुत ही बढ़िया राइटिंग। और दूसरे श्री कृष्ण हलवासिया जी जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया, तो उनका भी स्पेशल थैंक यू। मैं उमेश बघेलिया, मेरा साड़ी का काम है, जितनी भी टीचर्स है, दिल्ली में मेरा प्रीतमपुरा शोरूम है रजरचना बुटीक के नाम से। मैं सब टीचर्स को इनवाइट करता हूँ जब भी स्कूल से आगे से जाता हूँ, भिवानी आता हूँ, सबको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू एक सेकंड बेटा, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म का प्लान कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म की साड़ी सबको भैया की तरफ से गिफ्ट। चंद्रशेखर 2010 से करंटली भिवानी से छोटा सा। मैं धीरज बत्रा, मैं करेंटली वर्किंग कर रहा हूँ एक्सिस बैंक में लॉ डिपार्टमेंट में, और मैं 2000 में पास आउट हुआ था। 2005 बैच। मैं विशाल मुरारिया 99 में पास आउट हुआ था स्कूल से, 92 में एडमिशन लिया था 6th क्लास में, और अभी फिलहाल भिवानी के अंदर एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ पिछले 11-12 साल से एसएसबी फैमिली के नाम से। खाना थोड़ा ठीक खिलाता हूँ नहीं, ये डिस्काउंट देते हैं, मैं गई हुई हूँ वहाँ पे, पर 2 साल पहले। Lots of thanks for the all present here on the stage. हेलो, हाँ मैं डॉक्टर दिव्या सांसी गोयल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सिविल हॉस्पिटल भिवानी से। The only one thing मैं हलवासिया स्कूल को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन केरला से की है, एंड केरला इज अ वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। So I used to be very sincere and hard working in my whole life. So once my teacher asked me, my HOD asked me why, so I only said single word, I am Halwasian. That's why Myself, Dr. Nitesh Goyal, working as a Nitesh Goyal Head and Poison Hospital, Bhiwani, and सभी टीचर्स और सभी स्कूल में यहाँ का मतलब स्टूडेंट बहुत ही बैकबेंचर्स रहा हूँ हमेशा से, पर सज्जन सर और सभी टीचर्स से मुझे एक ही चीज मिली है, वो है डिसिप्लिन। अगर लाइफ में डिसिप्लिन है तो हर चीज आसान है, वरना कभी भी कोई भी चीज अचीवमेंट के लिए डिसिप्लिनिंग है जो हमें होना चाहिए। तो मुझे आप सबसे शेयर भी करना था। थैंक यू फॉर ऑल टीचर्स फॉर दिस प्रीशियस मोमेंट। ये दोनों लाइफ पार्टनर भी हैं और दोनों मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ देम। बाकी सभी स्टूडेंट को भी प्राउड है, कभी कोई ये कहे कि ये भी प्राउड है। ठीक है। Good afternoon, everyone. I am Major Nobam Chan. I am serving in Army presently and posted in Wara, Jammu and Kashmir. Captain Sawan just left the hall, otherwise I would have given my gratitude to him also. And discipline, as he talked about, yes, discipline is the thing we learned from the school. And other than this trophy which I have in my home, is the trophy 100% attendance in this school. So, and I also want to give my gratitude to Badola sir. Thank you so much. That time I was in NCC. Thank you so much everybody and to all teachers. Thanks. Good afternoon, everyone. I am Naveen Yadav. I am presently working as drug inspector in Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. I came to Halwasiya from Shishu, from Halwasiya Bal Mandir in 1986, and I was passed out in 2001. But for only 1 year, I went out of the school for 10. And after 1 year, I just came back. I told to my parents, मेरे को हलवासिया में भिवानी रहना है वापस। बहुत मेमोरी है स्कूल की। कुछ मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे अनु खरीजा मैडम आई, यहाँ पे हमारे टीचर होते थे।
इन्होंने पूरे साल में 6 महीने तो हमको सिर्फ सुलेख सिखाया, कैसे सुंदर लिखना सिखाया। रोज हमसे क्लास में आके पूछते हैं किसने ग्रेड कार्य किया, सभी खड़े हो जाते हैं। जो जिसने नहीं किया वो खड़े हो जाओ, जिसने किया जो कल करके आएंगे वो बैठ जाओ, सभी बैठ जाते थे। रोज का ऐसा ही होता था। I want to share one more thing that Madam was explaining about this organization of this event. Our teachers don't need to explain anything. You are not answerable to anyone. Whatever you have done for us, you have already done. Now it is our responsibility how we can pay back to this cooperation. Thank you very much. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम परीक्षित सिंह है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, इधर ही बीमारी में ही काम कर रहा हूँ 3 हॉस्पिटल में। एंड मैं जो भी हूँ अपने गुरुजनों की वजह से ही हूँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विनय जवाहर, मैं यूको बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं सबसे लकी हूँ अभी के स्टूडेंट्स में, तो मैं अभी भी स्कूल रोज आता हूँ क्योंकि मैं स्कूल की एक सेकंड के लिए सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि बहुत सारी संख्या में लंच है, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं लग पा रही थी, शिकायत भी है, तो प्लीज डबल लंच करके सबको जाना है। बिना लंच के कोई नहीं जाएगा, अदरवाइज वेस्ट होगा। नमस्कार, मैं अशोक भारद्वाज। मैं एक्चुअली यूकेजी में आया था और 10th में चला गया था, तो करीब 11-12 साल, और बहुत सारी मेमोरीज जो यहाँ पे शेयर हो रही थी। कैप्टन सत्येंद्र सांगवान के साथ मैं भी गया था उसमें, और बहुत सारी मेमोरीज। इनफैक्ट उस टाइम तक प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट ओपनड अप इन इंडिया, तो कोई भी माँ बाप ये सोचता था कि बेटा IAS बन जाए या फिर फौज में चला जाए, इंडी हो जाए। 9th क्लास तक बेंचमार्क होता था अजय गुलाटी, तो अजय गुलाटी ने कुछ किया है बस वही करना है और कुछ पता नहीं। तो अजय गुलाटी IIT में चले गए, तो भैया IIT करना है, तो फिर वो IIT किया। उसके बाद अगला बेंचमार्क होता था सौरभ शर्मा, वो है नहीं यहाँ पे। सौरभ शर्मा में से एक इमीडिएट सीनियर बैच थे। उसके बाद बहुत कुछ किया, मतलब IIT हो गया, बाकी सब कर लिया। अभी मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ कार्मी में, और कल से एक्चुअली चेंज कर रहा हूँ। आई एम जॉइनिंग एज चीफ ऑफ स्टाफ इन रेडियो पावर गुड़गांव। One takeaway that I will say from this school, I got tons of exposure in almost everything, except one part which is dance. उसको छोड़ के मैंने लाइफ के हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। अगर कोई हो कि योगा हो, शंख भी बजाया मैंने, मेरे घर वाले मना कर रहे थे, तो मतलब हर टाइप के इवेंट में, और उसका बहुत फायदा हुआ आगे जाके। मतलब कहीं पे इंटरव्यू है, आई विल गिव वन एग्जांपल। So interview started, okay, what's your good name? I said Ashok Kumar Bhardwaj. The next question is, what does Bhardwaj stand for? I had no clue, but it is like spontaneous. So I said Bhardwaj is one of 7 Saptrishis. The interview said name other 6, and I actually started recalling. अच्छा ठीक है, ये विश्वामित्र है, ये है, ऐसे मतलब नाम बोलने शुरू कर दिए। कहीं भी पढ़े थे संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए। So you never know कि कौन सी चीज कहाँ पे फिट बैठ जाएगी, और फिर इवेंचुअली सलाह देके, सलाह तो हर कोई देता है जब उसके पैसे लेने हो, तो इस टाइप का बहुत सारा ज्ञान कहीं पे भी काम आ सकता है। वही कर रहा हूँ। कोई बातें किसी के बारे में विशेष रह जाती है यार। जैसे मैंने जब गुलाटी जी का, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता था, स्टेज पर वहाँ बुलाने होते थे, वो काम रावल जी ने मुझे दे रखा था, तो क्या देखता था, फर्स्ट में वही था, सेकंड क्लास में वही फर्स्ट, थर्ड में वही फर्स्ट, और आप भी उसी कैटेगरी में आते थे। और क्यों आप हमेशा स्कूल में गवर्नमेंट और एक और खुशी बात कि बाप का इंटरव्यू यूएसए में हुआ, कहीं भी हुआ, तो इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने बार-बार आपसे ये पूछा, क्या बात, आपकी जोड़ी कहाँ से है, क्या है? तो आपने कहा, मैं तो हरवासा विद्या विहार हरियाणा में एक स्कूल है, उसका एक प्रोडक्ट हूँ, तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो आपने वो सारी बातें तो बताई थोड़ी थोड़ी,
सारी बातें इकट्ठी कर दी, आपके पास आई। उस समय अपने टाइम में बच्चे ये कहा करते थे, भगवान ने इनको दिमाग दिया है तो बहुत गिफ्टेड बच्चा है ये। और वही प्रेरणा आगे अपना दिखा रही है। 2001 की बैच सब डॉक्टर थे। 2001 में अपने स्कूल से एक नंबर ऑफ डॉक्टर निकले थे। वो बस्ती तो अभी कम है, लेकिन उस बैच में डॉक्टर बीरा, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर धीर, ऐसे और बहुत सारे भी हैं। तो मैं आप सबसे मिलकर के बहुत गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ। और इसी तरह से आप संस्था का नाम आगे बढ़ाए रखें, किसी भी फील्ड में जाए, हमेशा माता पिता और विद्यालय को याद रखें, सब भगवान सब ठीक करें। अशोक जो है मेरे बैच में हम 2002 से हैं, फर्स्ट क्लास से और 10th तक हम लोग साथ ही थे। ये हमेशा फर्स्ट रहा है, सुनील हमेशा सेकंड रहा है, और एकता रही है, एकता सुनील अप डाउन रहे थे, फोर्थ में हमेशा तो मैं अभी तक नहीं मिला था, अभी स्टेज पे आके मिला हूँ। तो अशोक का 10th तक जाना, 10th के बाद नहीं रहा था, अशोक चला गया था स्कूल से। और गुलाटी सर का जो इन्होंने बताया, गुलाटी सर 1997 बैच से सबके फाइनलिस्ट थे। हम लोग मेडिकल सेक्शन में थे, हर वक्त कहते थे नहीं आईआईटी क्लियर हुई है, आईआईटी क्लियर हुई है। उसके बाद हमारे बैच से पहला आईआईटी यही था जो निकला था, और जय 10th के बाद से चले गए, बट ये हमेशा फर्स्ट रहा है। तो ये इवेंट मुझे याद था, इस जर्नी को 10th में ब्रेक किया था, वो भी है हमारे साथ। और मुझे एक्टिविटीज करवानी होती थी, विदिन 2 days 2 hours में किसी को कुछ कहना है तो पकड़ आती थी कि अशोक आ जाओ, वहाँ पे स्टेज पे कोई चाहिए तो आ जाओ, ये कर देना। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और बहुत सारे मेरी जिंदगी में बच्चे आए जिनको मैंने चाहा कि रावत साहब ने कहा कि 2 घंटे में कोई मेहमान आने वाले हैं, स्टेज तैयार हो जानी चाहिए और 4 आइटम हो, आइटम कहाँ से लाओ। तो ऐसे बच्चे अशोक जैसे या अजय गुलाटी जैसे, या सारे और बैठे जिनके नाम नहीं ले पाऊंगी, कि मुकेश राणा ने कहा कि तुमने क्विज किया तो वो याद है ना, तो चलो आ जाओ। तो ऐसे वाले में मेरे को इन बच्चों का बहुत वो रहता था, और इसके कारण से मुझे लगता था कि बहुत एप्रिशिएशन मुझे ऑफिस में मिलती थी कि अरे वाह, घंटे 2 में इतना कार्यक्रम बढ़िया करवा दिया, बच्चों की वजह से हो पाया। नमस्कार, मेरा नाम है एकता धूजा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ रेडियो डायग्नोसिस एम्स दिल्ली में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि सब बता रहे थे, अशोक अभी भी मुझे बैठ के यही बोल रहा था कि तुमने 10th में मेरा बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, एंड आई ट्रूली फील गिल्टी फॉर दिस। इट वाज नॉट इंटेंशनल, मैं पब्लिकली अपॉलोजाइज कर रही हूँ। बहुत सारी मेमोरीज हैं एक्चुअली स्कूल की, हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे। स्कूल मतलब कॉलेज से ज्यादा मेमोरीज है मेरी स्कूल के साथ। अब जब हम आए भी थे, इट वाज लाइक द मोमेंट वी एंटर्ड, वहां से कि यहाँ हम साइकिल पार्क करते थे, यहाँ पे पहले कार्स का कुछ था ही नहीं, गार्डन ऐसा होता था, सरस्वती माँ पे पुष्पार्पण ऐसे होता था। मतलब मेरा बच्चा आया था साथ में, उसको मैं यही बताते हुए लेके आ रही थी। और मतलब हर पॉइंट, हर जगह पे एक याद जुड़ी है जिसको बोल सकते हैं। एक रिक्वेस्ट सर ये जरूर रहेगी, वी थैंक यू फॉर दिस, बट अगर वो दैनिक नंदिनी अभी भी एग्जिस्ट करती है तो प्लीज वो जरूर शेयर करें, क्योंकि वो प्रेयर जैसे अभी गाई जो वो फर्स्ट से जो तब से चला हुआ आ रहा है, मतलब दैट इज अ प्रेशियस थिंग व्हिच वी चेरिश टिल डेट। और थैंक यू मैम एंड ऑल द टीचर्स। अभी भी जब हम हिंदी में बहुत कम लिखते हैं, पर जहाँ पे भी जब मैं हिंदी में लिखती हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मेरे को फर्स्ट प्राइज हमेशा हैंड राइटिंग का मिलता था वो मैम की वजह से, और जब भी अपना नाम हिंदी में लिख के कहीं देना होता है या कुछ भी हिंदी में लिखना होता है, ऑलवेज गेट दिस कॉम्प्लीमेंट कि आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। तो थैंक यू सो मच। मतलब बहुत एफर्ट्स डालते हैं टीचर्स, दे आर रियली कमेंडेबल। एक टीचर मैम, इट्स नॉट इजी एज सर सेड, इट्स नॉट इजी टू बी अ टीचर। पढ़ाया था, they are also welcomed। तो टीचर्स को भी ये बहुत गर्व महसूस होता है जब आप
सब लोग हमें मिलते हैं तो हमें लगता है अपने परिवार में केवल मैं, मेरा पति और हमारे बच्चे नहीं हैं, ये सारे बच्चे भी हमारा परिवार है। उनको मिलकर हमें बहुत खुशी होती है और आप लोगों का सहयोग जब मिलता है, विशेषकर डॉक्टर राज मेहता और नितेश गोयल भिवानी भी हैं, तो जैसे ही लगता है कि मैं बीमार हूँ मुझे तुरंत याद आता है, तो क्लिनिक जाऊं तो उससे पहले मैं घर आ जाते हैं तो लगता है मैं ठीक हो गई। तो बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम प्रतीक दलाल है और मैं 2009 में खलवासा से चला गया था। अभी एसके सर बता रहे थे कि वो बच्चा टॉपर रहा, तो मुझे भी बताने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं हमेशा लास्ट से टॉपर था। 2014 में मैंने बीटेक किया और उसके बाद मैं मुखर्जी नगर चला गया। वहां हमने 2,500 बच्चों के बैच पढ़ाए। मैंने पिछले 6 साल में एसएससी, बैंक पीओ और एनडीए की रिगार्डिंग सबसे पहले सर सर्वदा शक्ति सर, ये वारक्राई होता है ग्रेडेड का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेजर साहब भी आए, सैल्यूट टू यू सर। तो मैंने वहां पर सबसे ज्यादा डिफेंस के एस्पिरेंट को ट्रेन किया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 5,000 प्लस गवर्नमेंट जॉब हमने वहां पर रहकर दी है। और आगे कभी जाना होता है तो कभी भिवानी का नाम आता है। सर आई वाज इन एफएसपी गांधीनगर 2016 when I got recommended from FSB selection board, Air Force selection board, and my interview officer said कि where are you from? मैंने कहा सर from भिवानी। तो उसने मेरा जो बीआईक्यू फॉर्म होता पढ़ा, उसने आई सेड खलवासिया बिग स्कूल, आई सेड यस सर बिग स्कूल। तो सिलेक्शन बोर्ड में आप कहीं भी जाएंगे, बेसिकली मैं डिफेंस के स्टूडेंट को ज्यादा ट्रेन करता हूं पिछले लंबे टाइम से, और मैंने भी भिवानी के अंदर थोड़ा सा ट्रेन चेंज करने की मैंने कोशिश की है। हालांकि मैं अलग-अलग 5 गवर्नमेंट जॉब में रह चुका हूं, राइट नाउ मैं हेड गवर्नमेंट में हूं। मैं एक बार राइडर सर के पास आया भी था और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, खलवासा का नाम जाना जाता है हमेशा आईआईटीज के लिए या फिर डॉक्टर्स के लिए। एक चीज का और रिवॉल्यूशन पे लेके आऊंगा कि इस बार नाम जाना जाएगा एनडीए के लिए। मैं थोड़ा टाइम होगा क्योंकि मैं शायद 2010 में हूँ, मेरे कोई जूनियर है? मैं तुम्हारा टाइम ले लेता हूँ। तो मैं सर से मिला, राइडर से मिला, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। क्यों ना कुछ स्कूलिंग जो 12th में हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ और एडवांस लेवल, जैसे सर ने फिजिकल एक्टिविटी की बात की। सर मैं बोलता हूँ अगर मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ा होता तो जितना कॉन्फिडेंस आज बोलने का है, मतलब मैं आज घबरा रहा हूँ, वरना मेरी क्लास में 3,000 बच्चे होते मैं कभी नहीं घबराता सर। लेकिन मुझे आज यहाँ के थॉट ऑफ द डे में आज भी नहीं बोल पाऊंगा। जो और मैथ सिखाने में एक ही टीचर को मैं हमेशा याद करता हूँ, इवन वो टीचर अंधेरे में जा रहा हो तो मैं पहचान लूंगा, हाँ हेमंत शर्मा सर गए। जितना अच्छे से मैथ सर ने पढ़ाया है, आई कांट एक्सप्लेन कि जिस तरीके से सर बेसिक कवर करते हैं, और मैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा विलेज बैकग्राउंड से आता, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाता था, तो सर समझाते, ट्यूशन भी गया मैं सर के पास। जो सबसे अच्छा सर का बिहेवियर था, डाउन टू अर्थ, हर एक बच्चे तक पहुंचना, समझाना उसको, वो सबसे बड़ी बात थी सर। और ये मेरा प्रॉमिस है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक मीट होगा मैं हर बार आऊंगा। हालांकि मैं भिवानी के अंदर ही मैं कार्यरत हूँ, मेरे अंडर में ट्रांसपोर्ट और आरटी आता है, मैं असिस्टेंट हूँ वहाँ पे, लेकिन वो मेरा फुल टाइम नहीं है, जॉब को सैक्रिफाइस करेंगे क्योंकि इस बार सर एनडीए को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इनवाइट किया, और इनविटेशन की जरूरत नहीं है। कल रात को ही मुझे आईओसी सुमीरा मैम की जो लड़की है आईओसी प्रोड्यूसर से पता चला कि एलुमनी मीट हो रहा है। मैंने कहा सर आई विल कम एंड आई विल जॉइन। तो इनविटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी मैम, पता चलेगा जरूर आएंगे और डेफिनेटली इस बार चेंज लाएंगे रहेगा सर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आस्था साकी है और मेरी बहन दिव्या साकी भी यहीं की पास आउट है, मेरी मदर भी यहीं की पास आउट है, मेरा ब्रदर भी यहीं का पास है। The only thing which I can say is I'm really proud to be a Khulwasian. I'm really proud to be a part of such a big family which is since so many years and it's been there and I think it's going to be there for long.
अभी right now I'm working as a product manager for Oracle. But the one very important thing which I've got it from here is, so जब मैं स्कूल में थी तब मैं संसद का पार्ट होती थी यहाँ पे सब लोगों ने टीचर्स के बारे में बहुत कुछ बोला, चीजों के बारे में बहुत कुछ बोला. Of course they are really important and really important to our hearts. But one very important thing is जब मैं यहाँ होती थी तब मैं 6 साल संसद का पार्ट रही हूँ. एंड संसद में मैं अभी भी सबको जाके बोलती हूँ कि ना संसद की जब असेंबली होती थी वी यूज्ड टू टेक प्लेजेस कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. देन मंथली हमारी वो होती थी कि मंथली वी कम बैक एंड से कि ये फीडबैक है स्कूल के बारे में. वी यूज्ड टू मेक दोस एजेंडास कि दिस शुड बी मेंटेड इन आवर वेज. तो वो चीजें ने मुझे एक बात सिखाई कि हाउ टू टेक योर रिस्पांसिबिलिटी वेरी सीरियसली. डजंट मैटर हु यू आर, doesn't matter you are a part, you are just a student here, but how to take your responsibilities very seriously and try to win the case, doesn't matter who it is. So that thing has come into me and I'm really incorporating the same thing into my products as well. मैं doesn't matter मैं कौन हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं वहाँ जाके proudly बोलती हूँ नहीं, मुझे ये नहीं पसंद, I need to change this. So I'm really thankful for this whole family for making what I am doing. मेरा नाम अमरजीत है, मैं यहाँ से 2007-8 के बैच में पास हुआ हूँ और नाउ प्रेजेंट टाइम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में टीच करता हूँ. और जो मैं आज कुछ हूँ आदर्श मल्होत्रा मैडम, जसविंदर सर, इनकी वजह से हूँ. मैं सबसे लास्ट बेंचर रहा हूँ, हमेशा मेरी पिटाई होती थी. मैडम आती थी आदर्श मल्होत्रा मैडम क्लास में और मेरी पूरी लेक्चर लग जाता था. मॉनिटर कहती थी आज हमने ये कर दिया, आज हमने इतने वो कर दिया. फिलहाल मैं 2014 से गवर्नमेंट कॉलेज में टीच कर रहा हूँ. मेरा नाम अमित कुमार है. करंटली मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में. और 2007-8 बैच में मैंने यहाँ से 12th पास किया. बहुत सारे मोमेंट रिमेम्बर करते हैं तो 2004 में मैं यहाँ पे आया था और जितने भी टीचर मिले, जैसे जॉब को मैंने ज्वाइन किया कॉलेज में तो मेरे सामने सबसे पहले मैंने सोचा कि सब्जेक्ट की नॉलेज लेके तो आप किसी जॉब को ज्वाइन करते ही हो, लेकिन टीचर के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके. वो जो चुनौती मेरे सामने थी, तो मेरे सामने सबसे पहले हलवासिया के जितने टीचर्स थे उनका चेहरा मुझे ध्यान आया और मैं कोशिश करूँगा उनके जैसा बनने की, वैसा ही कुछ करने की. जो एक्सपीरियंस खट्टे मीठे रहे तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ रहते हैं कि आप एक टीचर के रूप में क्या करते हो. कुछ मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ, मैं यहाँ पे जब 9th में आया तो लैंग्वेज को लेके मैंने बड़ी दिक्कत थी. रूरल स्कूल से मैंने अपना 8th पास किया और वाइसिंग मैडम यहाँ पे हैं तो उन्होंने एक बार मुझसे क्लास में पूछा कि अभी आर यू पेइंग अटेंशन. एंड उस टाइम में इतना लैंग्वेज को लेके मुझे इतनी प्रॉब्लम थी विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज आस्किंग मी टू. आई सेड नो मैम. तो मैडम ने क्लास के बाद वो स्पेशल मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देती थी. मैडम दीपमाला यहाँ पे हैं. मैडम एक बड़ा मजेदार इंस्टेंस है कि मैं साइंस का पेपर दे रहा था और आपने देखा कि आप एग्जाम हॉल में थी कि हम इतने कुछ लिखा नहीं हुआ कुछ भी, इतने टाइम तक 15-20 मिनट हो गए तो आपने पूछा हमें कुछ नहीं आता, नहीं है. तो मैडम ने सोचा कि सोशल साइंस में भी इसको ऐसे ही हालत होगी, नहीं आता होगा. बोली ठीक है माधव सभागार में आ जाना एग्जाम के बाद से. मैडम ने मुझे सोशल साइंस का सारा पढ़ाया. शायद वो क्वेश्चन मैडम ने ज्यादा फोकस करके बताया जो इन्होंने पेपर में डाल रखे और मेरे 95% प्लस मार्क्स सोशल साइंस में आ गए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ किस तरह के टीचर आपकी स्पेशल केयर करते हैं, एक स्टूडेंट का किस तरह से उनको पता होता है, ये बात बहुत प्रभावित करती है मैडम. जब हम जॉब में जाते हैं शिक्षक के रूप में आपका आदर्श हमारे सामने रहता है कि जो हमारे टीचर्स ने हमारे लिए किया हम भी वो अपने स्टूडेंट्स को दे पाए, उस तरह से अपने प्रत्येक स्टूडेंट्स की केयर कर पाए. अमरजीत को अभी बताया इसने, मैं स्पेशल I want to say sorry to him. अमरेंद्र सर की वजह से एक बार मैंने इनके पापा से पिटवा दिया था इसको. सर ने जैसे ही पता लगा कि सेम गांव से दोनों आते हैं तो सर ने कहा ये रिपोर्ट कार्ड साइन करवा के नहीं लेके आता है. अब इसको बताए बिना इसके पापा को स्कूल में लेके आना है. तो मैंने वो कर दिया. तो ये अब तक मुझसे शिकायत करता रहता है. और स्पेशल थैंक्स टू मल्होत्रा मैम, जसविंदर सर स्पेशली, सचिन सर, थैंक टू यू सर. जसविंदर सर एक अभिभावक की तरह ऐसे रहे कि कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी इनसे जब मर्जी स्काउट फोन में जाके डिस्कस कर लेते थे. जितने भी टीचर मिले सारे रिस्पेक्टिव टीचर्स को मेरा प्रणाम. थैंक यू वेरी मच.
हलवासिया एलुमनाई एसोसिएशन को बहुत बहुत थैंक यू जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये अवसर हमें दिया मिलने का, इस तरह की गैदरिंग का। थैंक यू वेरी मच। मैं गौरव गर्ग, मैं एक ज्वेलरी बिजनेस चलाता हूँ गौरव ज्वेलर्स के नाम से पिछला बाजार में, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं हलवासिया का स्टूडेंट रहा हूँ। और 20 दिन पहले मुझे एक बेटी हुई है जिसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। अभी जैसे ही मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं सारे टीचर्स को देख रहा हूँ। अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने किस टीचर से मार नहीं खाई, सबसे ही मार खाई है। खासकर कि बड़ोदरा मेरे साथ एक मेरा दिल की तरफ है, जैसे महेश्वरी मैम की क्लास से बाहर निकाल दिए, एक अमरेंद्र सर थे सर, ये थे सर क्लास से बाहर निकाल दिए। मतलब इसमें ये नहीं कि हम आज उसको मतलब रचनात्मक बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं सर हमेशा। ये चीजें हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। अभी जैसे बताया कि मैं मेरे जैसे दीपाराम ने कहा कि मैं मेरे लड़के को नहीं पढ़ाऊंगा, तो हम सब के लिए ये जब हमारी शादी होगी और जब नया जनरेशन आएगा तो हम भी चाहेंगे कि वो भी कहाँ से जाए, हलवासिया से जाए। थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा एक मिनट के लिए, एक बहुत सारे मैसेज जब आते हैं तो एक विशेष बात अपने बैच के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारा छोटा सा 23 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसमें से मेरी नजर में 3 तो हम एक साथ गवर्नमेंट कॉलेज में एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, और 1-2 लोग और है जो हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे लोग टीचर्स हैं, ये बड़ी विशेषता है हमारे बैच। नहीं, हर किसी से मार खाना और हर किसी से क्लास से बाहर निकलना ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब जो विद्यार्थी बच गए हैं, छात्र छात्राएं 2012